Students will come. राइट जी। ये हो गए पास्ट पेपर्स हमारे। नवंबर 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 एक बार मैं पेपर नज़र मार लूँ कि कहीं मैं जून 42 को तो नहीं बोल रहा। एक सेकेंड, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे हैं कंपेयर टू A1। अस्सलाम वालेकुम सनाना बेटे, आप कौन है? यू आर नॉट माई स्टूडेंट। अगर किसी और आईडी से आए हैं तो मुझे बता दें आप कौन है। अच्छा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है ठीक है, सो आई एम राइट। नवंबर 43 का मैंने एक दो वीडियो शायद नहीं लगाई। अपना वेरिएंट हम करवा चुके। अब मैं 41 देख रहा हूँ जल्दी से। विंटर 23, 42 हो गया। 41 में देख रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ये हमने करना है। जी बच्चों, आप भी देखिए। अगर कोई लगता है कि पहले किया हुआ है तो लेट मी नो। इकोनॉमिक डिक्लाइन, हाँ ये भी करवा दिया। अच्छा, 41 भी हो गया। अब मैं 43 निकालता हूँ। ये कंफर्म करवा दिया। वीडियोस में चेक कर लूँगा कि क्यों नहीं लगी है, कहाँ लगी हुई है। अच्छा जी, 43 का पेपर, यस इट्स अ डिफरेंट पेपर। डिक्लाइन ऑफ साउथ अफ्रीकाज इकोनॉमी। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तसल्ली से इसको पढ़िए मेरे साथ ही। South Africa is the most industrialized country in the continent of Africa, but it is also an economy with much economic inequality. South Africa is known for its inequality ना। जी, तो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में से है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका का, लेकिन इनकम इनक्वालिटीज वगैरह बहुत ज़्यादा है। Recent governments in South Africa have aimed to reduce economic inequalities by redistributing incomes and increasing both job and investment opportunities for all sections of society, inclusive growth लेने के चक्कर में। Unfortunately, the reforms have been undermined through poor organization and management. State railways, port facilities, airways, and electricity production have been affected. Government statistics for the first quarter of 2020 show that South Africa's economy contracted by 3.2%, means इनका GDP, real GDP 3.2% से गिरा. The biggest quarterly decline of actual economic growth in a decade. Gross domestic product per capita per head था जी $6130 in December 19. अब 5.8% लोअर ये हो चुका है compared to December 18. तो ये इन्होंने परसेंटेज चेंजेस इन जीडीपी दे दिए आपको ओवर द पीरियड. द इकोनॉमिक डिक्लाइन इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्री, which is a state owned monopoly. It is struggling to survive mainly due to mismanagement. For several months, it rationed electricity consumption and introduced regular power cuts for households and industries. हमारे मुल्क की तरह वहाँ भी लोड शेडिंग वगैरह हो रही हैं. Send up, send up, please. The rationing policy led to decreases in production and increase in unemployment. The company's debts added significantly to South Africa's current national debt to GDP ratio of 56% and are seen as the biggest threat to the economy. तो एक और मसला भी उन्होंने बताया कि जो इनकी मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी थी उसमें मिसमैनेजमेंट की वजह से पावर कट्स वगैरह हुए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ी और उसकी वजह से उधार बहुत लेना पड़ा। साउथ अफ्रीका का नेशनल डेट 56% चला गया, तो वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स था उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी. Further evidence of economic difficulties can be found in the mining industry, a significant part of South Africa's economy. A controversial reform was introduced to give more equality of ownership. Already facing rising costs and growing bureaucracy, many mining firms, including multinational companies, stopped investing altogether, which reduced potential economic growth. The mining industry declined. Thousands of jobs were lost despite South Africa having significant deposits of platinum, gold, and iron ore. अच्छा, ये वो क्वेश्चन जिसका एक क्वेश्चन काफ़ी डिबेट भी हुई थी और मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया था कि इन्होंने क्या मार्क्स की उल्टी दे दी है. यस यस यस, ये वो पेपर है जो हमने मॉक से पहले किया था.
For South Africa's economy to grow, it needs to address major infrastructure issues. Also, in disadvantaged communities, the education system is weak, contributing to a skills shortage and a rise in unemployment rate to 27%. नीचे उन्होंने ग्राफ भी दे दिया है उसका. अब बेटे उफ एक और भी है जी, साउथ अफ्रीका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उन्होंने दे दिया है. ओ माय गॉड, सच अ लॉन्ग आर्टिकल. An analyst said a critical reason for the low economic growth has been a lack of private sector investment and foreign direct investment. यानी मल्टीनेशनल्स भी कम आ रही हैं और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी कम है. The lack of investment was not just due to political policies, but also due to uncertainty and mismanagement, which led to continued inequalities. ठीक है जी. ओवरऑल साउथ अफ्रीका में इनक्वालिटी और मिसमैनेजमेंट इनएफिशिएंसी वगैरह की बात हो रही है. जीडीपी भी गिरा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, तो काफ़ी सारे मुश्किल हालात उन्होंने बताए. तो लेट्स स्टार्ट विद, देखिए मैं बार बार बताता हूँ ये इक्वालिटी और एक्विटी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छी तरह करें. डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एक्विटी. अब कोई बच्चा मुझे बताओ, मैं 2-3 दफ़ा ये करवा चुका हूँ, सो अच्छी तरह मुझे इसका आंसर दें. इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, पहले उस पर बात करें. सॉरी, अगेन अगेन दोबारा बोले, मैं जरा एक मैसेज देख रहा था, दोबारा बोले. इक्वल ना बोले, गिविंग एवरीवन फेयर अपॉर्चुनिटीज. एक्विटी बिल्कुल सही है जी, इट हैज टू डू विद फेयरनेस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है. सेम अपॉर्चुनिटीज, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज, फेयर अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, प्रमोशन में. बिल्कुल सही बोला आपने. और इक्वालिटी क्या है वही. Yes, exact same treatment to everyone, exactly equal distribution of income, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. समझ आ गया. लेट मी टेक माई बर्ड आउट जी, ये बहुत शोर करेगा, हमें क्लास में पढ़ाने देगा. आई एम सो सॉरी जी, ये मेरे साथ नहीं गया, तो आई एम सेंडिंग समवन एल्स फॉर हिम. एनीवेज जी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और एक्विटी का फ़र्क अब आप लोगों को आ जाना चाहिए. एक्विटी हैज़ टू डू विद फेयरनेस, गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन. नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, हर चीज़ में फेयरनेस हो. whereas equality is exact same treatment, equal job opportunities, income inequalities ना होना, यानी equal distribution of income, which is not possible but positive economics है. सब बच्चों को क्लियर हो गया जी इनका डिफरेंस. गुड. Describe, अच्छा नेक्स्ट ये, define what is meant by actual economic growth and analyze the relationship between economic growth and unemployment as illustrated by figure 1.1 and 1.2. अच्छा जी. लेट्स सी नाउ. इसमें वो कह रहे हैं, जी जी बेटे, बोले बोले. देखो वो हर चीज का एक मार्क देता है आपको, तो वन लाइनर का समझो 1 मार्क है, एक पर्टिकुलर बात करने का, फिर एक एग्जांपल देने का एक एक मार्क है. इस तरह करके 3 बातें करनी है आपने. दोनों की दो दो बातें कर लेना ब्रीफ सी. लेट्स सी नाउ. डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, यहीं पे रुकते हैं, फिर जाके डायग्राम में देखेंगे. एशलीना, व्हाट इज एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ? It's when अच्छा. PPC
from a point inside the PPC towards the PPC. But what is the actual definition, Bete? Oh, it's when I slipped my mind. One second. Anyone else, G? Economic growth It's की when they definition. utilize all the excess. Anyone else, G? When real GDP rises over time, Oh, you it want the is economic growth stuff? yes, but actual economic growth को साथ तभी बताओगे ना? Due to movement from inside PPC towards PPC. Okay, I thought the economic growth part. Stop We've it. done it so many times. Now stop it. Next, G. Analyze the relationship between economic growth and unemployment as illustrated by figure 1.1 and 1.2. इन दोनों को सामने कर लेते हैं. ऊपर है जी अनएम्प्लॉयमेंट, नीचे है नो सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट और ऊपर है जी नीचे जीडीपी है सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है और ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. तो अब मुझे बताएं जरा दोबारा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज मेंट बाय एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ? एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज इलस्ट्रेटेड बाय फिगर 1.1 एंड फिगर 1.2. जनरली क्या रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा. वेयर इज योर माइंड? एनीवेज, तो नेगेटिव रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है. अब आप लोग जरा तसल्ली से देखें कि क्या इस फिगर में कोई नेगेटिव आपको नजर आ रहा है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. कहीं पे पहले आप ये चीज ढूंढें. दो एक एविडेंस यहाँ से ढूंढें और फिर कोई दो एक एविडेंस जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा और फिर हम कंक्लूजन देंगे. हमेशा इसका अनसर्टन होता है. तो जस्ट लुक वेयर इट इज एग्जिस्टिंग द रिलेशनशिप. पहले From 9 to 11 देखें जरा. yeah, from 9 to 11, the percentage of GDP that's going down, which mean and the unemployment rate is going up, which shows that this Yes, relationship. 9 to 11, there is some evidence that economic growth is falling and unemployment is generally rising, but there are some periods around 2011 जो इसको negate भी कर रहे हैं. Yes, and then अब if you आगे look at देखें, ठीक है? 2018, if you look from 2018 to 19, if you look from 2018 to 19, right near the end of the graph, the unemployment rate is rising while the percentage हाँ, of GDP is 17 also onwards गलत जा रहा है. दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं. ग्रोथ भी ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है. तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट एविडेंस जा रहा है. Generally, the trend is uncertain. वी कैन नॉट बी कंक्लूसिव कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है. हो सकता है टाइम लैग भी इसके अंदर हो. बट यू गेट इट. आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन किया एक्चुअल को प्रॉपरली. 2 मार्क्स तक 1 मार्क मिल गया. दो ही समझते हैं. और फिर एक स्टेटमेंट कि जी 9 to 11 यस देयर इज एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस. और बिटवीन 13 to 15 अब देखते हैं. 13 to 15 में इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएट कर रही है. सो अगेन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. जबकि 17 ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. तो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप जा रहा है. तो दिस डायग्राम्स आर अनसर्टन. दे नॉट गिविंग अस अ कंक्लूसिव एविडेंस. सब बच्चों को समझ आ गया? एक्सीलेंट. लेट्स मूव ऑन. इसका आखिरी पे दोबारा मसला होएगा. दिस वाज द पेपर जिसमें आई वाज स्टम्प्ड कि इन्होंने मार्क्स स्कीम क्या दी हुई थी. एनीवेज, assess the evidence issues. Assess the evidence provided about the कहाँ पे जी significance of the performance of state-owned electricity monopoly as a contributor to the decline in South Africa's economy. आपने पहले अप टू 3 मार्क्स तक ढूंढना है किस हद तक जो स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोली है उसने साउथ अफ्रीका इकोनॉमी की डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया. उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था. और फिर आपने देखना है कि जी और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी को डिक्लाइन करने में किया है. और फिर कंक्लूजन देना है कि क्या ये जो स्टेट ओन मोनोपोली का डिक्लाइन है ये मेजर रीजन है, सिग्निफिकेंस है इसकी बहुत ज़्यादा, या और रीजंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो अब तसल्ली से देखो. समवेयर अराउंड हियर ये दिस इकोनॉमिक डिक्लाइन, ये वाला पैराग्राफ आपको कुछ स्टेट ओन्ड इकोनॉमी के मोनोपोली के बारे में बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में.
आई वुड लाइक, हाँ हाँ, पहले इसके पॉइंट्स बताएं, 2 मार्क्स लें कि कैसे उसने डिक्लाइन में कंट्रीब्यूशन दिया है जुरेज। Okay, so the company that ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप डेटा एग्जैक्टली वो पढ़ रहे हो, गलत नहीं है, इसको रिफ्रेश कर दो। There are two clear evidences that it has contributed to economic increases in decline. Yes, unemployment and GDP ratio yes, of a country. शाबाश। So there are two clear evidences कि जी decline in economic activity जो आया है साउथ अफ्रीका में about electricity supply company. Number one, mismanagement की वजह से पावर कट्स हैं which will lead to rising cost of production, खुद ऐड करो, और एज अ रिजल्ट सजेस्टेड इन द डेटा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। फिर कंपनी के जो उधार हैं दे आर एडिंग टू द डेट्स ऑफ साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट, हत्ता के जीडीपी के 56% रेशियो पे चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि हमें कुछ पता लग रहा है कि कितना इसका हिस्सा है उस जीडीपी डेट में, पता लग रहा है आपको इस एविडेंस 56, से कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने कितना डेट बढ़ाया है। 56%, I think. उसने कहा कंपनी डेट्स एडेड सिग्निफिकेंटली टू साउथ अफ्रीका, तो दे डिड ऐड अ साइजेबल पोर्शन, बट हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया उसने। फर्दर एविडेंस ऑफ इकोनॉमिक, अब दूसरी बातें आ गई, इसको कोई बच्चा पकड़ो जी, और क्या क्या मसले साउथ अफ्रीका में आए हैं। Controversial reform. टेक योर टाइम गाइस। Multinational stopped investing. Yes, multinationals have stopped investing Thousands of because of a jobs were lost. controversial reform, ठीक है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ ओनरशिप की कोशिश की गई थी, पहले ही कॉस्ट बढ़ रही थी, ब्यूरोक्रेसी थी। तो ना सिर्फ लोकल माइनिंग फर्म्स ने इन्वेस्ट करना कम किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई, बल्कि मल्टीनेशनल ने भी इन्वेस्टिंग ऑल Thousands टुगेदर of रोक दी। jobs were lost despite. राइट, तो सिर्फ ये नहीं है, और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, एजुकेशन सिस्टम वीक है। सो नॉट जस्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कंक्लूजन क्या है, यस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी decline has contributed to the decline of South Africa's economy, but it's not the only reason. There are other indicators as well, such as multinationals pulling away, such as local mining firms going out of business and stopping investment, Weak education वीक system. एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। इस डेटा के साथ खेलते रहना, आपको काफी एविडेंस मिल जाएगा। एवरीवन क्लियर ऑन दैट जी? अब बच्चों, अगेन आई रेस्ट द केस ऑन यू गाइस, मुझे जरा अच्छे अच्छे बच्चे समझाओ आखिरी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं तो लास्ट टाइम इसको सही इंटरप्रेट नहीं कर पाया था, और अभी भी मेरा वही केस स्टैंड कर रहा है। देखिए इसको अच्छी तरह। Attracting investment and managing uncertainty are the most effective ways to improve economic perspectives. जी अश्लीना, व्हाट डू यू थिंक इज द क्वेश्चन? So you're supposed to discuss whether attracting, obviously, investment and managing uncertainty. First, you discuss that, like what that will bring about for South Africa's economy, and then additionally, you discuss whether it is actually the most effective. So you can sort of discuss other alternatives or maybe limitations of it. ओके, एनीवन एल्स? नॉट टू बैड जी बेटे, क्या लग रहा है ये क्वेश्चन, हमने क्या इवेल्युएट करना है? यस बच्चे, गोरे को बोलो। एग्जैक्टली exactly, मेरा भी यही व्यू था। हाँ, मेरा एग्जैक्टली exactly यही व्यू था जो आप अश्लील ने बोला, और आप लोगों ने भी बोला। अजय कोई और बोलना चाह रहे तो प्लीज डू एट द इनपुट। मार्क स्कीम विल शॉक यू। It's a बोले बोले long-running जुरेज। debate. हाँ ठीक है, एग्जैक्टली exactly यही लग रहा है ना कि भी अनसर्टेनिटी मैनेज करके, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट करके, या कोई और तरीके हैं जिनसे साउथ अफ्रीका इकोनॉमी को करती है। Just look at the mark scheme, how weird the answer was. Now, Ashlina, the other day you argued with me, Yeah, 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 yeah. but now you see, when you see the Yeah, yeah, yeah. question, this is totally.
out of sync. The mark scheme, in my opinion, is totally out of sync. And the good news is, majority of kids, like I did it as well, इसको मिसइंटरप्रेट करेंगे और इन सात में से दो एक मार्क्स मुश्किल से लेंगे, तो मार्क्स के ग्रेड थ्रेशोल्ड बहुत नीचे आएगा, तो इतना वरी करने वाली बात नहीं है. लेकिन लेट्स लुक व्हाट हैव दे डन हियर. ये जी अभी आ गया आपका आंसर. पहले वाले भी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ. इकोनॉमिक इक्वालिटीज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज बिटवीन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी. ये इक्वालिटी है. जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स, अर्निंग एटसेट्रा में सेम ट्रीटमेंट, एग्जैक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज वगैरह. इक्वल इक्विटीज, फेयरनेस, जस्टिस, एनी रेलिवेंट कमेंट. अब समझ आ गया आपको वहीद कि यू डोंट हैव टू राइट अ होल बुक, दो एक कमेंट अच्छे करने हैं कि डिफरेंशिएशन वाज़ेह हो जाए. एक पॉजिटिव है इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्विटी नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है. इक्वालिटी एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट है जॉब डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, वेल्थ इनकम अपॉर्चुनिटीज में, हर सेक्टर के लिए, हर रेस के लिए, हर जेंडर के लिए. और इक्विटी फेयरनेस है, जस्टिस है. All those on same level income should pay the same rate of tax. They should be treated fairly. ये है. अब उसके बाद जी actual economic growth is measured by the percentage change in country's real national output यानी GDP in a period of time. Definition है. PPC वाली बात आप बेशक करो, लेकिन always give the right definition. No, but when you asked me the definition, I thought But I had economic to growth की search definition actual. is always rise in real Yes, GDP. Actual economic growth is when we're using current resources, and potential is when I we're said increasing current resources. लेकिन देखो उसने मार्क्स की में कुछ ऐसा नहीं हाँ. बोला. So make sure you define the term correct. General trend G, employment fluctuates, but there is a general rising trend. Declining rates of growth are linked with increasing levels of unemployment, or there's an inverse relationship between them. Specifically, negative rates of growth in GDP correspond to highest levels of unemployment. General growth trend is falling. वही अनसर्टन सी बात है, इसने थोड़ा और बात की, हमने फिगर टू फिगर किया. दोनों सूरतों में मार्क्स पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह. अब देखो, assess the evidence provided about this, ये तो हमने कर लिया था. Electricity supply is fundamental to funding an economy. Company has been unable to meet national demand for electricity. Power cuts वगैरह आए हैं. To Russian consumption, article mentions other industries in decline, but states that electricity company is the biggest threat. Lack of electricity has had an effect on output, and mining and manufacturing have led to unemployment. General uncertainty has led to reduced investment and also contributed to situation that South Africa's actual growth is well below its potential growth. उसके बाद जी no similar figures for other industries, so a definite conclusion about exact significance of electric industry is not possible. Just fight with the data. देखो उसने 6-7 पॉइंट बता दिए, आपने 5 लेने. एवरीवन क्लियर? अब देखिए जी, दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं बिफोर गोइंग टू द आंसर. Evaluate whether attracting investment and managing uncertainty are the most effective way to improve the prospects for South Africa's economy. क्या ये दोनों मोस्ट इफेक्टिव हैं या कोई और मोस्ट इफेक्टिव है? ये हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग थी. इफ एनीबडी अंडरस्टूड इट डिफरेंट, मुझे बताएं. आंसर देखें जी. Various government reforms and poor performance of some state industries have undermined confidence in entire South African economy. This can be illustrated by a lack of investment by private sector in mining industry leading to increased unemployment. वो तो problems बता रहे हैं. The South African economy has also been diminished in the international economy as When indicated by fall in FDI. I remember now what I was saying. I was saying if this was like a 20-mark question, we would talk about all the problems first. High unemployment But means that doesn't low make any consumer sense, you're right. expenditure and low future prospects पे end पे उसने बात की है. For improvements seem limited in the short run. Longer term is it needs to overcome a skills shortage by reforming education, restrictive trade union practices. Nevertheless, there is some increase in FDI. Long-term increase in infrastructure are needed. An increase in employment, economic growth in the economy. कुछ समझ रहे हो? बिल्कुल हे वायर सा आंसर है. बट आप लोगों ने बेटे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, सही कॉन्सेप्ट से कोशिश करने की कोशिश करें. कुछ ना कुछ 3-4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे. राइट जी. तो लेट्स नाउ मूव टू, एनीबॉडी हैज अ कमेंट ऑन दिस बिफोर वी मूव ऑन जी? एग्जैक्टली exactly. उसने कहा है कि भाई क्वेश्चन तो है कि इसका रिजल्ट क्या होना है, और वो बता रहा है इसकी रीजंस क्या थी. दैट्स एग्जैक्टली माय कंसर्न. मतलब ये क्वेश्चन है वो जी, discuss if monetary policies the most effective in controlling inflation, और फिर वो बताए
कि मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक हैंडल करता है, ठीक है जी। मनी सप्लाई को किस तरह बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट्स को कैसे रेगुलेट करता है, फिशर क्या करता है, ये वाली बातें कर। हम्म। ये मुझे यही लग रहा है। देखो नीचे अगर मार्क्स काउंट करें, 2 3 4 5 6 मार्क्स नीचे हैं, और एक कंक्लूजन का मेरे ख्याल में नीचे सारा आंसर है। ऊपर वाला उसने कॉन्टेक्स्ट के भी स्कोर दे दिए, आंसर तो नीचे वाला है। हाँ, थोड़ा सा जनरस होके मार्क्स दे दिए, तो इन अदर वेज इट्स एन इजियर क्वेश्चन इन दैट सेंस, ठीक है ना। लेकिन यू डू नॉट लूज द फोकस, डू इट एज यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब मेरे बच्चों, सेक्शन बी, अगेन आई कीप सेइंग economic efficiency, labor market, consumer behavior, production and cost objectives of firms. Second question is straightforward from economic efficiency. Pollution is caused when consumers or producers make decisions based on self interest. This is a sign of market failure. With the help of a diagram, हम बहुत सारे बनाएंगे. Evaluate the extent to which government policies should rely upon market forces to address this market failure. Do I need to do this question, या आप लोग काफी हद तक समझ रहे हो? किसी को मसला है तो बता दो, because we cannot lose economic efficiency की grip. एक छोटा सा स्केच ले लेते हैं थ्रू द मार्क्स, करवा दूं? चले करवा दो। सबसे पहले मुझे जरा बताएं, की टर्म्स कौन सी हैं जिनको हमने इलैबोरेट करना है? लिखी हुई ना भी हो तो ढूंढे कर। मार्केट फेलियर और पोल्यूशन की कोई नहीं है, और क्या है जी? ये कौन सी इनएफिशिएंसी है जब पोल्यूशन हो? एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, तो उस पे हमने अच्छे खासा पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले जी, मार्केट फेलियर, मोस्ट ऑफ यू नो, it is when free market forces of demand and supply fail to allocate resources in an efficient manner, optimal level पे नहीं बना रहे होते, या रिसोर्सेज ओवर एलोकेट हो रहे होते हैं या कम। बेहतर है कि यहाँ मार्केट फेलियर्स को लिस्ट कर दो: केस ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, केस ऑफ पब्लिक गुड्स, द मिसिंग मार्केट, केस ऑफ मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। अब जब वहां पे आए तो उसको आपको समझ आ गया कि हमने आगे चलना है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, पोल्यूशन इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, अब उसको भी डिफाइन कर देंगे। दीज आर हार्मफुल स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। समझ आ गया जी। अब एलोकेटिव एफिशिएंसी पे जाते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मार्केट फेलियर, लेट्स understand what allocative efficiency is and how its inefficiency will lead to market failure. Allocative efficiency is, बताएं बच्चों, 3 क्राइटेरियंस हम करते हैं। प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्राइटेरियंस क्या हैं जिनके कहाँ जज होती है? व्हाट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 3 बातें। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? नो नो नो, नॉट एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल टू एक्सटर्नल कॉस्ट। मार्जिनल सोशल बेनिफिट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। समझ रहे हो वहीद? ये बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। फिर एम एस बी इज इक्वल टू एम एस सी, एंड देर आर नो एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। फिर जी आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सेकंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम ऑन गाइस, एफिशिएंसी है, इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए ना। वो मैंने अभी बताया अब्दुल्ला, और कौन सा है? जस्ट वीव डन एम एस सी इज इक्वल टू एम एस बी। बाकी के 2 बताएं, स्पेशली वो जो सी आई वाला हमेशा ग्राफ बनाता है और मार्क देता है। आप लोगों ने सॉल्यूशंस नहीं पढ़े 23 वाले, वरना अब तक ये बात क्लियर हो चुकी है। यस, थैंक यू अब्दुल्ला। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। व्हेन द लास्ट यूनिट, जितनी उस पे स्कार्स रिसोर्सेज लग रहे हैं उतनी ही वैल्यू कंज्यूमर्स प्राइस की शक्ल में दे रहे हो। बेटे अब ये रट जाना चाहिए, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। और आखिरी है जी, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। डिमांड सप्लाई कर्व लगाओ, डिमांड को एमएसबी बोलो, सप्लाई को एमएससी,
इक्विलिब्रियम पे तीनों क्राइटेरियंस पूरे हो रहे हैं। बच्चों अभी आ गया है कि नहीं? आई एम लिटिल सरप्राइज कि अभी भी आप लोगों को क्राइटेरियंस याद नहीं है या कम से कम बोल नहीं रहे हो। चलें जी, अब हम करते हैं व्हाट इज द मार्केट फेलियर हियर। प्रोडक्शन की भी करनी है हमने और कंजम्पशन की भी, क्योंकि उसने क्या बोला है ऊपर, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मेक डिसीजन। सबसे पहले हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। यहां पे कौन सी गुड्स के केस में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी साथ साथ आ रही होती हैं? कंज्यूमर ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं कि थर्ड पार्टीज, डीमेरिट गुड्स। बच्चों थोड़ा इंटरेक्ट करो, आई एम गेटिंग अ लिटिल पैनिकी कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे। Do we mention that merit goods also produce negative effects on consumer? नहीं, उसकी कैसे करती है बेटे? नो, Because that if is a you've got case of congestion. positive externality. No, no, positive externality. No, but Their externalities positive overweigh the negative externalities, तो वो मार्केट फेलियर नहीं है वहाँ पे, सोशल बेनिफिट ज्यादा होता है ना। सो नेवर गो आउट ऑफ लाइन। तो डीमेरिट गुड्स का केस ले, सिगरेट्स का, अल्कोहल का, कि भाई कैसे कंज्यूमर इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से कंज्यूम किए जा रहे हैं, उनका प्राइवेट बेनिफिट इज मोर देन सोशल बेनिफिट, क्योंकि उनकी एक्सटर्नल कॉस्ट हैं जो इग्नोर हो रही हैं। ठीक है, एमपीबी डिमांड के बना दूं मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों आप लोग ओनरशिप के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी बट ये खामोशी इज क्लियर इंडिकेशन। द kid who's sitting next to me is also not answering very clearly. Shina, can you draw the graph of negative consumption externality so I know exactly where your preparation is? no, can you do it? I'll do it. Get the point? You're not doing enough work. This is exactly my point. बेटे प्राइस कॉस्ट बेनिफिट लिखें तो बेस्ट है, लेकिन इस वक्त आप प्राइस क्वांटिटी भी लिख दें तो आई बी ग्लैड कि कुछ ना कुछ तो लेवल सही किया। अब है जी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, और सप्लाई कर्व में हम मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम एमएससी भी लिख देंगे, बिकॉज हम इस वक्त कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मार्केट, हाउ डिफिकल्ट इट इज। हर दफा ये एक बार डिमांड या सप्लाई शिफ्ट करनी होती है, हर दफा बना रहा हूँ। अब आपका काम है बेटे, इस तरह बहुत मसला हो जाएगा। डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करवाएं, अब ये बनेगा एमएसबी, यानी कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा था, कंज्यूमर स्मोकर को ज्यादा मजा आ रहा था, सोसाइटी को हार्म हो रहा था, इसमें से एक्सटर्नल कॉस्ट निकली। अब ये सोशल बेनिफिट बन गया, एमएससी एमएसबी की करेक्ट ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम बना, ऑप्टिमम प्राइस बनी, और ऑप्टिमम आउटपुट बनी। ये मार्केट फेलियर था ओवर कंजम्पशन का। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई एम इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। अब समझ आ गया बच्चों, सिर्फ डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, साथ लेबल्स करने हैं। टेल मी हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू डू इट बिफोर यू गाइस फील कॉन्फिडेंट। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मार्केट वाज एलोकेटिंग रिसोर्सेज एट ई मार्केट, price was PM, quantity consumed was QM. Definitely, consumers' benefit was greater than society's, because society was facing external costs such as drunk driving, such as uh, passive smoking, adding to pollution in the air, lung diseases for non-smokers. Not smoker, उसको तो private cost है वो, external cost ignore हो रही है। Once external costs are treated, society's benefit curve will shift to the left. MSB is MPB minus MEC. अब समझ आ गया जी, ऑप्टिमम पे आ गया, क्यू एम से क्यू ऑप्टिमम, ओवर कंजम्पशन हो रही थी, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही थी। बच्चों प्लीज स्टे क्वाइट इफ यू आर अंडरस्टैंड इट, वरना प्लीज आस्क मी। लेट्स फिक्स आवर एफिशिएंसी। हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एक ही चैप्टर है 20 पेजेस का, व्हाट एल्स अस टू लर्न इट प्रॉपर्ली। एनीवेज जी, सो दैट्स दैट, जस्ट यू डिड। अब उसके बाद जी अब वो कह रहे हैं जी वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज। थोड़ा सा हम पहले प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं कि पोल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय प्रोड्यूसर्स डिसीजंस बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, cause private sector only considers private costs, they do not consider external costs, hence over allocation of resources हो रही होती है। बहुत सिंपल डायग्राम है। अब कोई बच्चा मुझे बनवाओ प्लीज। पहला मैं लिख रहा हूं जी सप्लाई कर्व, इसको क्या लेबल करूं?
नहीं अब्दुल्ला, एक्सटर्नल कॉस्ट तो प्राइवेट सेक्टर कंसिडर नहीं कर रहा है। प्राइवेट कॉस्ट प्लीज प्रैक्टिस कर लो मेरे बच्चों। आई एम वरिड नाउ। और डिमांड कर्व को आपने एमएसबी लिखना है क्योंकि इसको हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स के कंसिडर नहीं कर रहे। इक्विलिब्रियम मार्केट आया, कॉन्सेप्ट्स ले बेटे उसके मुताबिक बनाए। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर अराउंड क्वांटिटी मार्केट। अब जब एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट में शामिल होंगी, सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट होगा? कॉस्ट बढ़ने से अब्दुल्ला, कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है मेरा बेटा। ओवर कंजम्पशन हो रही है बेटे सिगरेट्स की, आप उसको जाइड पे करके और बढ़ाना चाह रहे हैं कंजम्पशन। ओवर प्रोडक्शन हो रही है इनकी। S1 और अब ये MSC बना। अब्दुल्ला नीड टू वर्क मेरा बेटा। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। हाउ डिफिकल्ट इट इज मुझे बताएं। जस्ट द लैक ऑफ प्रैक्टिस हियर। आई कैन टेल यू गाइस आर। नहीं बेटे, गलतियां तभी होती हैं जब नहीं आता होता। ये ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही थी, यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन लिखना है आपने। अब्दुल्ला कम से कम एक्सप्लेन कर दें ग्राफ को, शाबाश बेटे। इक्विलिब्रियम के थ्रू आपने एक्सप्लेन किया। बोले बोले। हम्म। ठीक है। तो सोसाइटी इज फेसिंग ग्रेटर कॉस्ट देन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वेरी गुड। काफी हद तक अच्छा एक्सप्लेन था, बस बनाना सीख लो, एक्सप्लेन कर लोगे आप लोग। काफी अच्छा था अब्दुल्ला, नो वरीज। जी मेरे बेटे बताएं, थोड़ा सा कुछ और पूछना है इसके बारे में, कुछ समझना है। आई वाज अबाउट टू स्किप द क्वेश्चन एट दिस स्टेज एंड अभी भी आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हो। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, अब आप लोग सही बोलेंगे। गवर्नमेंट क्या करे डीमेरिट गुड्स के बारे में और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के बारे में? सेम पॉलिसीज दोनों के लिए चलती हैं। व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? एक पॉलिसी बताएं मुझे। ठीक है। कौन सा टैक्स? शाबाश। इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगाना चाहिए? इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। शाबाश। आप खाली एक्सटर्नल कॉस्ट लिख दोगे तब भी सेफ है। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, प्राइस बढ़ेगी। मेनी स्मोकर्स विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड, स्पेशली अल्कोहल बहुत महंगी हो जाएगी। उसके बाद जी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा विच दे कैन कॉम्पनसेट द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग मेरिट गुड्स। क्यों कामयाब नहीं होगा बच्चों? वही तीन रीजन हमेशा कहता हूँ अश्लीना। नच चोरी नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी अभी उसको नहीं किया, नहीं किया उसको अभी तक नहीं किया। जी अब बताएं बेटे। शाबाश। यस, अब सही बोल रहे हैं। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को एस्टिमेट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कितनी पोल्यूशन, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके बाद में गेस्टिमेट है। तो गवर्नमेंट विल नेवर बी एबल टू पुट द एग्जैक्ट एमईसी वैल्यू इन मनी टर्म्स। सही टैक्स नहीं लगेगा। यस, demerit goods often have inelastic demand and अगर वो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी थी और डिमांड inelastic थी तब भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और फिर जी इनडायरेक्ट टैक्सेस के और क्या मसले हैं? दो मसले और बता दो, बड़ी अच्छी वैल्यूएशन हो जाए। रिग्रेसिव इन नेचर, दे फॉल हेविली ऑन पुअर। तो एज अ रिजल्ट आप अमीरों को कह रहे हैं जी पे करके सिगरेट्स भी पीते रहो, ड्रिंक भी करते रहो, गरीबों को उससे रीच से बात कर रहे हो। और फिर जब ये इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, ये लीगल डीमेरिट गुड्स महंगी होती हैं, लोग इलीगल मार्केट्स में चीपर ड्रग्स पे चले जाते हैं। ये सब बातें आपने करनी थी मेरा बच्चा, हमेशा है। पॉलिसीज पे आप लोगों की ग्रिप है, ग्राफ्स पे नहीं है। मार्केट फेलियर्स पे थोड़ी वीकनेस है, जरा रिवीजन कीजिए, शाबाश। ठीक है। उसके बाद जी अश्लीना जो आप बता रहे थे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, बताएं दोनों, कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज के बारे में भी और प्रोडक्शन के बारे में भी अच्छी तरह। नेक्स्ट थ्योरी वही है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, इंफॉर्मेशन कैंपेन। अच्छी तरह बता दो कोई बच्चा। यस, पिक्चर्स ऑन सिगरेट बॉक्स, अल्कोहल के ऊपर वार्निंग, दिस इज
not safe for heart and everything. Yes. Sorry, आवाज नहीं आ रही। अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी, न्यूज़पेपर्स, उसके थ्रू लोगों को इंफॉर्मेशन फेलियर दूर होगा। प्रोड्यूसर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन कैंपेन की जा सकती है ताकि, हाँ, ये अब उसकी नेगेटिविटीज आ गई। ये बहुत आसान है, एडवर्टाइजमेंट बच्चे हैंडल कर लेते हैं। लॉन्ग रन इफेक्ट है, कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इनफेक्टिव कैंपेन थी, नजेस वर्क वेरी स्लोली। अक्सर लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, डेंजर अपील की वजह से एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा। प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी नजेस बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते, उनका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो हम यहाँ पे दोनों कर रहे थे। उसके बाद जो है, एक और कर लेते हैं, सब्सिडाइजिंग ग्रीनर प्रोडक्शन। जो क्लीन प्रोडक्शन वाली कंपनीज हैं उनको सब्सिडाइज करो, या पोल्यूशन परमिट्स कर दो, कुछ भी एक और कर दो जी। हाँ, वो प्रोड्यूसर्स की भी एक्सटर्नलिटीज है, तो उनकी ऊपर भी हम बात कर सकते हैं ना। तो हम इस क्वेश्चन ओपन एंडेड है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। सब्सिडीज ठीक हो गया, सब्सिडाइजिंग मेरिट गुड्स कर दो ताकि लोग डीमेरिट से जरा दूर हो जाए, ये भी बोल सकते हो। फिर नॉट, लेकिन सस्ते होने की वजह से अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन के लिए दूर होगा, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। आई नो, बट आई एम राइट नाउ हैंडलिंग बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। आप उस एंगल से सोच रहे थे, यू राइट। राइट, सब बच्चों को समझ आ गया? बच्चों अब मुझे बताएं, डू वी नीड मोर? ये इवैल्यूएशन हो चुकी है, कंक्लूजन हमेशा सेम है। मैं आपको फिर पढ़ा देता हूँ कि सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल वर्क बेटर देन द अदर्स डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटी एटसेट्रा। गवर्नमेंट आल्सो लैक्स इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट फेलियर दूर होगा, और उसके रिजल्ट में क्या उसको कहते हैं, वो ऑप्टिमल आउटकम के पास आ जाएंगे। लेकिन ये कहा जाए कि मार्केट फेलियर रिमूव हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबली स्ट्रेचिंग इट टू मच। अब जरा एक बार देख लो, ये सब मैंने किया है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिंक बिटवीन पोल्यूशन एंड मार्केट फेलियर, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, सारा कुछ बताया आपने। Recognition that pollution can be caused by production or consumption, explanation of negative externalities, use of a diagram to analyze the link between negative externality and market failure। आप एक पे प्रैक्टिस कर लो, प्रोडक्शन वाले पे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, अक्सर क्वेश्चन उस पे आता है, और कंजम्पशन वाले पे बेशक थोड़ी करो लेकिन करना है। फिर एनालाइज हाउ मार्केट फोर्सेस कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने देखा यहाँ पे अपने ग्राफ्स में कि जब हमने ये अपना उनको टैक्स वगैरह लगाया था, तो मार्केट फोर्सेस रिस्पॉन्डेड, कॉस्ट बढ़ी, प्राइस बढ़ी, कुछ कंज्यूमर्स अफोर्ड ना कर पाए। जब हमने सब्सिडी दी थी मेरिट गुड्स, सॉरी, अपना उस पे क्लीनर प्रोडक्शन पे, तो मार्केट रिस्पॉन्डेड, नया इक्विलिब्रियम ढूंढा और आगे गए। तो इस तरह करके मेरे बच्चों आपने मार्केट फोर्सेस पे थोड़ा सा एनालिसिस करना है। अब उसके बाद आपकी आगे, अल्लाह भला करे, वैल्यूएशन। Private firms are likely to aim for profit and might lead to these firms focusing on private cost, ignoring social cost। अब्दुल्ला, आप समझ आ रहे हैं? कभी भी सप्लाई कर्व को नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी में हम सोशल कॉस्ट लेबल नहीं कर सकते, वो तो एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिडर नहीं करते ना, वही तो मार्केट फेलियर है। फिर यूज ऑफ टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस प्राइस एंड आउटपुट इज अनलाइकली टू रिमूव ऑल मार्केट एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द करंट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, एमईसी मिलता ही नहीं है। ठीक है। फिर द यूज ऑफ मिनिमम प्राइस, वो भी लग सकती थी इसके ऊपर। ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग प्राइस मैकेनिज्म, यानी कंप्लीट बैन ऑन सच कंजम्पशन, उन्होंने कई बताई हैं, आप भी कोई तीन कर देना। अ कंक्लूजन शुड बी अटेम्प्टेड व्हिच एग्जामिन्स द नेट बेनिफिट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, जो हमने किया, बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स। उसके बाद मेरे बच्चों एंड पे इवैल्यूएशन देखो, इट्स पॉसिबल टू शो, इसको तो रट ले, that government intervention can reduce the level of inefficiency caused by the existence of negative externalities, but it is not clear whether the net effect of government intervention will always be positive. Some types of intervention will be more effective than others, depending on the nature of the goods service under consideration। समझ आ गया? जैसे सिगरेट्स वगैरह पे बैन लगाना अंडर एज वालों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू टैक्स लगाना, बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। तो ये वो बात कर रहा है। वही कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की उसने चार पांच लिख दिए कि हर तरह के, उसने नीचे लिखा एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज। तो तीन पॉलिसीज वेल एक्सप्लेन। बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन था बच्चों, अब समझ आया है? ऑल राइट जी, आई हैव टू क्लोज द क्लास बिकॉज मेरी एएस की क्लास का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, हाँ, इसको मैं कल आराम से कराऊंगा।
evaluate the view that monopolistically competitive firms will always charge lower prices and operate more efficiently than a monopoly firm. अगेन एफिशिएंसी का लिंक दोबारा दे दिए, इतना इनको एफिशिएंसी पसंद है। अगेन इसमें हम पूरी इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसमें प्रोडक्टिव ज़्यादा बता दोगे, एलोकेटिव को बताना कि ऑलरेडी, अच्छा पहला क्वेश्चन तो कर ही रहोगे, एलोकेटिव भी प्रॉपर बताओगे, फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिकली कंपेरेटिव मार्केट्स के फीचर्स, फिर क्या ये बात सही है कि लोअर प्राइस चार्ज होती है ज़्यादा एफिशिएंट है। इस पे हम कल इंशाल्लाह क्राइटी करेंगे पूरा। और ज़रा मैक्रो में देखें कौन से क्वेश्चंस मैं कहता हूँ। Policies, Unit 3 and Unit 7 to 10, Economic Growth, Income Inequalities, Economic Development and Globalization. Question, inshallah, would be there. देखो बेटे, फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट 3 से। नीचे assess the impact of international trade on the standard of living in low income countries, आखिरी चार में से आ गया। सो आई कीप रिपीटिंग कि ये पांच चार यूनिट्स आपकी पांच यूनिट्स आपके लाइफ सेवर हैं। माइक्रो में भी पांच बोल रहा हूँ और भी, तो अब इट्स अबाउट टाइम कि आप लोग रातें लगाएं और इनको क्लियर करें। राइट मेरे बच्चों, एनी क्वेश्चन? All right, I'm closing the class and stopping the recording.